हेलो बिग फैंस, मैं हूँ राज नाडा और वेलकम टू द बिग फैन शो वैलेंटाइन स्पेशल इश्क दंगल प्रेजेंटेड बाय वी आर्टिस्ट स्टूडियो एंड आवर ब्रांड पार्टनर्स जिम स्पिरिट, श्री गिरिराज एस्ट्रो सेंटर एंड अता खान शिफा सेंटर। हमारे साथ हैं गौरी एंड ऑन स्क्रीन तारा। तो मिलते हैं, पूछते हैं उनसे अबाउट हर वैलेंटाइन एक्सपीरियंस एंड वर्किंग ऑन द शो लेकर हम दीवाना दिल। तारा, गौरी, बताइए हाउ वाज योर जर्नी इनटू सिनेमा टीवी? कैसा रहा ये सफ़र और हाउ मच इम्पोर्टेंट इज लेकर हम दीवाना दिल फॉर यू? It's really important. We are putting all our efforts into this show. I started my journey in 2018. Okay. So college ka first year it was, and there are several societies in the college. I don't know if you know about Delhi University. No, I know very little about it. Yeah, so there's a lot of societies. Like हाँ. there are too many societies, and बहुत culture है, अच्छा. cultural activities का. So I joined a street play society over there. Okay. And from there I started, वहाँ से acting का थोड़ा पता चला. हाँ. Then I started doing theatre. Then Okay. COVID came. हाँ. So after that I again started doing theatre. Okay. And I think 2018 में ही I did my first audition. Okay. Got my first project. Did that. And then after It all happened in Delhi. yeah, ये सब दिल्ली में I हो रहा did everything from Delhi only. And then after college I did a corporate job. है. Like Okay. for 7 months, and during that time I realized that no, I You're not want made for that. yes, like not made for that. I won't say that. I enjoyed that work. Okay. मुझे मजा आया. I was a coder, Okay. so I used अरे to बाप enjoy रे. that. But then I used to miss this. So I left that job after like 7 months, and then I decided to join a proper academy. Okay. Did that for a year, and then I think last year I came over here. To Did my Bombay. first TV serial, and now this is my second. So finally in 2023 or 24 you came Yeah. to 2023. 23 and Yeah. so Lekharam Diwana Dil is your first television show? No, it's my second. Second. Okay, wonderful. Which was your first one? That was Lal Banarsi for Nazara. Acha, very nice, very nice. And Lekharam Diwana Dil mein, tell about your co-star Gautam. He's nice. He's good at his profession, and सब मिलजुल के करते हैं. We come on set. सर हमारे साथ डिस्कस करते हैं. So yeah, it's nice. Superb. हाँ. And Raj Khatri Productions, how is your association with them and Dangal TV? It's really nice. Like the production is really nice. They are giving all their efforts. They're always on set, making sure that everybody is on time. Everybody is doing Yes. their thing timely. So they're really nice. They consider all our points. If like there's any issue that we are facing, we can immediately go to them. They immediately solve it. So the production is really nice. The channel is really nice. They are really looking into the story. Absolutely. Yes. Dangal is now a household name. Uh-huh. Like not only in North, not only in South, but I think across borders. Yes. They are telecasting your shows in English in London also. Yes, they're expanding it a lot more, and the best part is that they're not like कि हाँ जो भी हो रहा है होने दो. They are very particular about what is getting telecasted. Right, what is being shown. Yes, what is being shown over their channel. So they're very particular about it. Super, wonderful. तो वैलेंटाइन स्पेशल है. हाँ. तो थोड़ी बहुत वैलेंटाइन एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात कुछ करनी नहीं है. होने वाला है. कुछ भी नहीं होने वाला है. So दिल्ली यूनिवर्सिटी, Yeah. दिल्ली का माहौल बड़ा अलग है. हाँ. So it's very different from Bombay. मतलब बॉम्बे से तो different है. Completely. The city is also very big. Political head. Many things are there. Right. Many things are there. So बहुत सारे क्यू कार्ड हाँ बहुत सारी क्यू कार्ड्स में रखता हूँ. बट सवाल बहुत थोड़े ही है. ओके. योर रोज डे एक्सपीरियंस, क्योंकि वैलेंटाइंस डे ना डायरेक्टली वैलेंटाइंस पे नहीं लैंड होता है. देयर इज ऑलवेज एक पड़ाव है. There are too many days. या देयर आर टू मेनी डेज. वो धीरे धीरे Layering है बिल्डअप proper, होता है. build up है. तो शुरुआत तो रोज डे से होता है. हाँ. तो रोज डे एक्सपीरियंस रहा लाइक कितने रोज आपने बटोरे? या मैंने सच में एक भी नहीं बटोरा है. मुझे एक बार एक रोज मिला था, वो भी एक बार पेपर पे ड्राइंग बना के मुझे दे दिया गया था.
तो मुझे आज तक कोई रोज अच्छा। नहीं मिला है। कॉलेज में मिला था, ऐसे पेपर पे ड्राइंग बनाई और दे दिया, खत्म। अच्छा, वैसे दे दिया। हाँ। मतलब बहुत बजट फ्रेंडली था क्या वहाँ पर कॉलेज में, इतना देश टू सेव? आई रिजेक्टेड इट इमीडिएटली। अच्छा, इमीडिएटली पेपर रोज था इसलिए रिजेक्ट हुआ, या अगर असली रोज होता तो एक्सेप्ट होता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आया, अच्छा ओके नाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द थैंक गुड यू फॉर द पेंटिंग। कंसिडरेशन, थैंक यू फॉर योर आर्ट वर्क। वंडरफुल। तो हाउ एनी एक्सपीरियंस ऑफ प्रपोज डे कि लाइक कोई बंटन के नहीं यार अभी नो अपन गौरी को मिलते हैं, एक आज प्रपोज तो कर ही देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, या तुमने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया? मेरे ध्यान में तो आया नहीं। बाकी अब मुझे नहीं पता, ध्यान में तो नहीं आया, ऐसा हुआ नहीं कभी कि मतलब कोई एकदम प्रॉपर से सूट वूट में और लाइक प्रॉपर स्टाइलिश आ रहा है कोई बन के कि हाँ आज हम प्रपोज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं एंड हुआ। आई डोंट थिंक सो पीपल डू दैट मच। मतलब ऐसा कुछ वो एक्सपीरियंस है ठेले वाले भाभी तेरी, ऐसा कुछ मतलब हुआ आई थिंक अगर आपको कभी प्यार होगा तो आप डे थोड़ी ना चुनोगे पर्टिकुलर, जब मन करेगा तब चले जाओगे कि हमें आज प्रपोज करना है। एवरी डे इज अ प्रपोज डे, मौका मिलना चाहिए। एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे, मौका। हाँ, बस सामने वाला खुश हो, हैप्पी मूड हो, वहीं चले जाओ, बात कर लो। एब्सोल्युटली। देखिए भैया, एवरी डे इज अ प्रपोज डे, बस मौके का फायदा उठाओ, सही तरीके से सही लोगों से बात करो। हाँ, चॉकलेट एक्सपीरियंस रहा? चॉकलेट तो आई थिंक फ्रेंड्स आपस में, मतलब आई कैन आस्क यू चॉकलेट दीजिए, चॉकलेट दीजिए। चॉकलेट दीजिए। आई थिंक वो तो फ्रेंड्स आपस में, क्या वी डोंट हैव एनी वैलेंटाइन, चॉकलेट दो या चॉकलेट दो। बट चॉकलेट तो बनता ही है। चॉकलेट मिली है क्या मुझे? चॉकलेट एक्चुअली मुझे मिली नॉट है। ओनली नहीं, जब हम वैलेंटाइन जैसा हम लोग ना बहुत सीरियसली हो जाते हैं, कोई ऑपोजिट सेक्स ही होना चाहिए, या वैलेंटाइन और दीज काइंड ऑफ डेज कैन बी सेलिब्रेटेड विद इन फैमिलीज आल्सो। हाँ, फैमिलीज आल्सो। तो लेट्स कम, फर्स्ट टेडी बेयर तुमने खरीदा या गिफ्ट किया गया या किसने दिया? माय पेरेंट्स ओनली। ओके। लाइक वो तो बचपन में ही आपको गिफ्ट्स मिलते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज वगैरह, तो वो मेरे पेरेंट्स ने ही मतलब कभी ये टॉय कभी वो टॉय। तो टेडी डे या टेडी का कोई एक्सपीरियंस रहा, लाइक आपका फेवरेट टेडी टॉय? नहीं, ये मेरा फेवरेट, आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप समथिंग लाइक दैट। एक डॉल थी जिसको अगर ऐसे टच करते थे या ऐसे क्लैप करते थे तो आवाज आती थी, वो गाना गाती थी। ओके। तो हाँ, वो डॉल मतलब मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे याद है कि एक बार शायद मैंने हल्ला मचाया होगा कि मुझे चाहिए चाहिए, तो एक लंबी वाली सी डॉल आई थी जिसके हाथ में माइक था, तो वो ऐसे करके गाती थी। ओके, वेरी नाइस। तो कुछ गाना याद है, वो कौन सा गाना गाती थी? याद नहीं, बट कुछ तो प्रियंका चोपड़ा की सब मूवी का कोई तो गाना था। सुन सुन के बातें बन गई तेरे साथ, समथिंग लाइक दैट। वेरी नाइस, ऑसम। तो आई थिंक प्रॉमिस डे के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना है। प्रॉमिस डे होता भी है, तो कुछ प्रॉमिस करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के लिए, आपके फैंस के लिए? मेहनत करते रहेंगे, आप हमारा शो देखते रहिए, आप हमें प्यार देते रहिए, वो देखते रहिए लेकर हम दीवाना दिल, डेली दंगल टीवी पर, प्लीज। हम बहुत मेहनत करते हैं। एब्सोल्युटली, एंड मैंने विटनेस किया। माय किया प्रॉमिस इज कि आई एम वर्किंग हार्ड, एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड, बस आप प्यार दो। 100%। और मैंने देखा इनकी मेहनत, परिश्रम जो लगाते हैं, द एंटायर क्रिएटिव टीम, एंटायर प्रोडक्शन टीम, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द सीन्स। एब्सोल्युटली, यू नो, लगातार परफॉर्मेंसेस को लाने के लिए रीटेक्स पे रीटेक्स, मेहनत, इम्प्रोवाइजेशन, एवरीथिंग इज ऑसम। एंड एनी एक्सपीरियंस ऑन हग डे और किस डे? बात पहली पड़ाव में ऐसे खत्म हो गई तो आगे तो क्या ही जाएगी। सो ओवरऑल फाइनली वो डे आ ही जाता है, पीपल कम टू दैट वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में तो बड़ा घर पे से तो बहुत सारे लोगों को छोड़ते भी नहीं है कि आज वैलेंटाइन डे है भैया, मतलब स्कूल ही मत जाओ, कॉलेज ही मत जाओ। वो बैग चेक होते हैं कि भाई कितने रोजेस मिले, क्या चॉकलेट्स मिले। ये आपने सही बोला, ये ऐसा होता था स्कूल कॉलेजेस में, ऐसा होता था। प्रोफेसर्स एंड लाइक ऑल द टीचर्स यूज्ड टू कम एंड चेक एवरीबॉडीज बैग कि कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। और लड़कों के बैग में तो इतना बथेरा सामान निकलता था, पता नहीं क्या क्या होता था। क्या निकलता था। हाँ, इतने सारे रोजेस होंगे या चॉकलेट्स होंगे। और फिर टीचर्स तो अलग वे में टॉन्ट करते ना। बोथ माय पेरेंट्स आर टीचर्स, सो आई नो। Okay, both your parents are teachers. Yeah. So then तो they know all the about this culture. They know. कि भैया स्कूल में Even होते they हैं। tell their stories कि मतलब उनके स्कूल्स में क्या हो रहा है। तो उनके अरेंज मैरिज थे कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज था। तो मतलब दे वो चुन के, मतलब टीचर को टीचर से ही शादी करना? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि टीचर को टीचर से अरेंज मैरिज, या आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, बट हाँ। वंडरफुल। सो आपका कुछ ऐसा रहा कभी विश रहा कि यार मैं भी टीचर बनूंगी, ऐसा कुछ था बचपन में? नहीं, एक्चुअली माय फादर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम अ प्रोफेसर, और ही वांटेड मी टू डू
any government job. गवर्नमेंट जॉब, ओके. सो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दैट यू विल बिकम एन एक्ट्रेस? No, I was doing the government job. गवर्नमेंट, before this. ओके. I was working as a software developer at the Ministry of IT, and then I left it. So he was really upset Upset. about it. That why would you do that? And for a year, he didn't know that I am going to some acting academy and I'm doing everything very seriously. Seriously. So he was really upset. Absolutely. But Mama has been really supportive. My brother has been really supportive. And now even my father, he calls me and he says, तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला सीन में? तुम्हें ये भी बोलना चाहिए था, वो भी बोलना चाहिए था. So I tell तो him, पहले जो बोल रहे थे मत जाओ, अब वो बोलते हैं कि इसको और बेहतर करो. बेहतर करो, right. नहीं, उनका भी तो स्टेक है ना नाम पर, कि वो बोलेंगे ना, अरे यार तुम प्रोफेसर की बेटी है, उसका डिक्शन जरा देखो, उसका ये उनका जरा डिक्शन देखो. हाँ, both of them are really good with हिंदी. उनकी हिंदी एकदम प्रॉपर अच्छे से, कौन से शब्द बोल देते हैं मुझे पता नहीं. तो मम्मा कई बार कॉल पे बोलती है, ये वर्ड का ऐसा होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट की फॉर्मेशन थोड़ी नेक्स्ट टाइम देखते हैं अभी. Absolutely wonderful. So this was her experience about Valentine. इस वैलेंटाइन स्पेशल में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप आपके दर्शक को, आपके फैंस को? हाँ, हमें बस यही प्यार चाहिए आपसे कि आप हमारे शो देखते हैं. 100%. एग्जैक्टली, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. जैसा कि प्रॉमिस डे के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम बहुत मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे. आप हमें बहुत सारा प्यार दीजिए. शो देखकर हमें बताइए कि क्या हम कर सकते हैं आगे, क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टोरी लाइन में, क्या कैरेक्टर, क्या फन पार्ट लग रहा है, तो हम उसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे. तो आप इसके अनुसार प्यार दे सकते हैं. नहीं, आ जाएगा, आपके घर से फोन आ जाएगा, बेटा वो बोलना था, बेटा ये बोलना था. तो आप ऐसे हमें प्यार दे सकते हैं. और बस तो लगातार अपना प्यार देते रहिएगा. लेकर हम दीवाना दिल, आप भी लेकर दीवाना दिल बैठकर टीवी पर, दंगल टीवी पर देखकर शो देखिएगा, प्यार दीजिएगा. फिलहाल तो हमारे शो में लेकर हम दर्द दिल चल रहा है. एवरीबॉडी इज क्राइंग. या सो बेस्ट पार्ट ऑफ द टेलीविजन इज इट गिव्स यू ऑल द इमोशंस. हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, प्यार भी, हर चीज, हर इमोशंस को वो टच कराते हैं. इसलिए भी टेलीविजन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बोरिंग हो जाता लाइफ. हम वर्क मोबाइल. एज एन एक्टर भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वेब में और मूवी में शायद आप दिन में एक सीन कर रहे हैं, 2 सीन कर रहे हैं. यहाँ पे एक दिन में हमें 4-5 सीन तो मिनिमम करने ही है. एब्सोल्युटली. सब में अलग अलग इमोशंस जा रहे हैं. किसी में हंसना है, रोना है, गुस्सा है. एंड वो सिर्फ हंसना रोना नहीं, सामने वाले को वो रुलाना भी है, हंसाना भी है. सो दैट इज आई थिंक ग्रेट आर्ट. एब्सोल्युटली. तो दोस्तों, ये थी गौरी. इन्हें ढेर सारा प्यार दीजिएगा. एक ऑटोग्राफ तो बनता है. This is a gift voucher from Gym Spirit for you. Thank you. So Gym Spirit, they are not only just gymming. The Irfan Rangres is a body correction, Okay. and he works on the body corrections also. Okay. And he works on sports injuries. And our next gift voucher is from Atha Khan Shifa Okay. Center. So they are specialists in all kind of critical illness like thyroids, migraines, and purely herbal. So he's a 4th generation traditional herbalist. Nice. Atha Khan. Atha Khan. Shifa Center. Shifa Center. Thank you. And the last but not the least, from Shri Giriraj Astro Palmist. He's a gemologist. He's a palmist. इन्हें contact करिए. He gives you good guidance. तो ये मुझे हमेशा बोलते हैं कि क्या पॉजिटिव रहना है. What colors you should carry along with you. What kind of a mindset you should carry. So. Right. I think Atha bhai is anybody who needs. तीनों ही हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं. So let's contact. जैसे जैसे मुझे समझ आएगा कि कब किसकी बारी है. Thank you. Wonderful. तो दोस्तों, ये थी गौरी. और इसी तरह हम और कलाकारों से मिलते रहेंगे, आप तक उनका संदेश लेके आते रहेंगे. अगले एपिसोड तक बने रहिएगा. ओनली ऑन द बिग फैन शो. Thank you.